بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈوگرا ذوالفقار ملک ایک بار پھر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہمارے پرانے درینہ ساتھی، نظریاتی اور تحریکی دوست خالد کشمیری کی دعوت، جیسا میں نے پہلے کہا ہے کہ آتے ہی انہوں نے دعوت دی تھی، لیکن مصروفیت کی وجہ سے، پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ شرف حاصل ہوتے آج 3 مہینے گزر گئے، تو آج ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ واحد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زمانہ طالب علمی کا وہ قدیمی دور، یعنی مشکل دور کے یہ ساتھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ بابر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی افطاری ختم کر کے ہم فارغ ہوئے ہیں، تو خالد کشمیری صاحب سے بھی وہ پیغام لیں گے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا۔ ان کو کہا ہوا ہے کہ کشمیر کو آج ہی آزاد نہیں کروانا ہے اور باتیں کریں آزاد کشمیر کی۔ خالد صاحب اپنا ناظرین کے لیے تعارف کروائیں تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب ڈوگرا صاحب، آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ چونکہ آپ کو یہاں آئے ہوئے 2 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، اور ہم چاہتے تھے کہ جب آپ آئے تو ہم اسی وقت آپ سے کئی میل بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو درمیان میں جو یہ وبا پھوٹ پڑی، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو شیڈیول تھا یا جو سوچ تھی اس طرح سے ہم نہ پورے اتر سکے، اور وہ لیٹ ہو گئے ہم۔ تو آج کل میری آپ سے فون پر بات ہوئی، تو میں نے کہا پتہ کرتے ہیں آپ، کیونکہ پچھلے عرصے میں عجمان میں تھے، تو چونکہ یہ جو دیرہ کا ایریا تھا یا دبئی کا تھا، یہاں اس ایریا میں خاصی پرابلم تھے، اور یہ ریڈ زون بھی ڈکلیئر کیا ہوا تھا، اور بے شمار لوگ یہاں سے جو اس ایریا میں نہیں رہ رہے تھے وہ سائڈ ایریا میں شفٹ ہو گئے تھے۔ تو اس لیے آپ آلریڈی وہاں پر موجود تھے، تو ہم نے کہا چلو جب تھوڑے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں واپس بلائیں گے۔ تو بہت شکریہ، ہم آپ کو UAE میں ویلکم کہتے ہیں، آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ آج کی جو صورتحال ہے، چونکہ آپ نے کہا جی کہ کشمیر کو نہیں آزاد کرنا ہے، چلو میں کشمیر ایشو پہ اگر بات کریں تو چونکہ بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور بہت بڑا ایشو ہے ذرا، تو موجودہ جو صورتحال ہے چلو اس کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ چونکہ کرونا کی وجہ سے ہم اس وقت جو پوری دنیا میں وبا پھوٹ پڑی ہے، اور ہم جو پچھلے تقریباً ہمارا کشمیر کا ایک خطہ جو ہے بھارتی موزہ کشمیر، وہ پچھلے 6-7 ماہ سے سمجھو اس وقت ریڈ زون اس میں لاک ڈاؤن میں تھا، یعنی اس میں کرفیو لگا ہوا تھا۔ تو اس وقت بھی ہم نے پوری دنیا میں یہ بات بتائی کہ بھائی یہ کرفیو ہے، ہم لوگ پریشان ہیں، ہمارے اسکول بند ہیں، ہمارے بچے اسکول نہیں جا پا رہے اور ہم پریشان ہیں۔ تو بے شمار لوگوں نے، یعنی پوری دنیا میں اس طرح کی ہمیں نہیں سپورٹ نہیں کیا، اس کو اس کی کوئی اہمیت نہیں دی اس بات کو کہ یہ کیا ہوتا ہے، کرفیو کیا ہوتا ہے۔ تو آپ پوری دنیا جب لاک ڈاؤن میں آئی، پوری دنیا میں جب کرفیو ہوا، تو پھر اب دنیا کو بھی اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ کرفیو کیا چیز ہوتی ہے۔ لیکن مختصر بات کروں کہ چونکہ اس کی وجہ سے چلو یہ تو ایک کشمیر ایشو کا ایک الگ ٹاپک ہے، تو ہم اس کی جو بھارتی موزہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، ہم بھارت کی جتنی بھی مذمت کریں کم ہے، اور یہ صورتحال اگر اسی طرح چلتی رہی، چونکہ یہ ابھی جو وبا ختم ہوگی تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پوزیشن میں اور اس سوچ میں ہے کہ ہم کوئی بڑا سٹیپ لینے کے لیے تیار ہوں اور لینا چاہتے ہیں۔ جی واحد کاشف صاحب آپ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے۔ تو جیسے خالد صاحب نے کہا کہ ہم بہت پہلے جو ہے جب آپ آئے تھے تو آپ کو انوائٹ کرنا چاہتے تھے، ہم نے پلاننگ بھی کر لی تھی، لیکن پھر شو میں قسمت کے درمیان میں ایسا لاک ڈاؤن آیا کہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ دبئی بھی بند ہو گئی، تو ہم بھی اس لاک ڈاؤن کا شکار ہو گئے۔ تو میں آپ کے توسط سے حکومت آزاد کشمیر سے ایک چھوٹی سی اپیل کیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ جس خطے کو ایک خوشحال اور ترقی یافتہ خطہ کہہ رہے ہیں، وہ ایسے خوشحال نہیں بنا۔ وہ یہاں لوگ جو ہے، آپ تارکین وطن جو کشمیری ہیں، وہ یہاں پہ صحراؤں میں جو ہے نا وہ خاک چھان رہے ہیں، یہاں سے انہوں نے پیسے کمائے ہیں، پھر جا کے وہاں انویسٹ کیا، گھر بنائے ہیں، تو سب کچھ وہاں نظر آ رہا ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں کام کاج بالکل ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے۔ تو خدا را یہاں پہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں بالخصوص دبئی ڈیرہ کی بات کرتا ہوں، تو یہاں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں تارکین وطن جو کشمیری ہے وہاں یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے آپ جو ہے نا کوئی ایسا حکومت پاکستان سے مل کر کوئی اقدام اٹھائیں کہ یہ لوگ سیفلی اپنے گھروں کو جا سکیں۔ یہاں پہ کھانے پینے کے، یہاں پہ ریزیڈنسی کے ایشو ہیں، یہاں کے ویزے کے ایشوز ہیں، تو آپ جو ہے نا پلیز برائے مہربانی یہاں پہ لوگوں کے مسائل سنیں اور ان پہ توجہ دیں، میری یہی ریکویسٹ ہے۔ باقی جیسا کہ خالد صاحب کہہ چکے ہیں کہ دنیا لاک ڈاؤن ہوئی تو تھوڑا لوگوں کو احساس ہوا کہ کشمیر میں بھی
आज 9 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, वहाँ पे खाने पीने की, वहाँ पे अद्वियात भी, वहाँ पे स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, लोग दफ्तरों में नहीं जा रहे, कारोबार बंद है। तो सब कुछ देख के जो है वो एहसास हुआ है हमको। तो बहुत जल्दी उस वक्त भी एहसास था, हम भी यहाँ 1 महीने तक यहाँ जो है ना वो अपने घरों से, रूम से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो हमको तो एहसास हुआ, लेकिन पूरी दुनिया को भी एहसास हो गया है। और हम अपील करेंगे दुनिया से कि वो इस तरफ भी तवज्जो दें और बिलखुसूस जो है कश्मीर में जारी जुल्म और सितम और बर्बरियत के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाएं। शुक्रिया जी। अच्छा जी सर, अपना तारुफ करवाएं थोड़ा सा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उसके बाद मेरा नाम बाबर मलक है और कोटली से तल्लक है मेरा। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने हमें ये शर्फ बख्शा। और जेके लीग्स का मैं बिलखुसूस में शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारे जो गरीब और पिछड़े हुए तबकात हैं उनके लिए आपने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और उनके हकूक़ की बात की है। और जैसा कि जो पैगाम है आज का जो हमारा, वो ये है कि हम अपने लोगों को ये पैगाम देंगे कि इस लॉकडाउन से जो सबसे एक नया जो हमें चीज़ जो मिली है वो है इंसानियत। बात जारी रखें आप। इंसानियत उसके हवाले से आज देखें आप, दुनिया क्राइसिस में आ गया, माशी क्राइसिस जो है वो शुरू हो गया है। वबाएं इससे पहले भी आती रही हैं और वबाएं जो है वो वबाएं ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उससे बाद जो सबसे बड़ा जो इशू बनेगा वो है माशी क्राइसिस। तो उसके लिए मैं अपने लोगों से ये अपील करूंगा, जो लोग अपने घरों में हैं, जो अपने वतन में हैं, उनसे ये अपील करूंगा कि वो अपने एग्रीकल्चर पे खुसूसी तवज्जो दें और एक दूसरे के सहारा बने। आज जो लोग माशी तौर पर बिल्कुल क्रैश हो चुके हैं, उनके लिए आज एक तो बाबरकत महीना है रमज़ान का और एक ये क्राइसिस भी है। इसमें अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, अपने गरीब तबकात के लिए कुछ ना कुछ जो आपसे बन पड़ता है वो करें, क्योंकि ये लॉकडाउन और ये चीज़ें हमें यही सिखाती हैं कि हमें इंसानियत की तरफ तवज्जो जो है हमारी मबज़ूल हो। जी सर, मैं इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जी जनाब, कोई पैगाम मैसेज आप भी दे लें, फिर वो दोबारा दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिज़र याद नाम है मेरा, खालिद कश्मीरी सर मेरे भाई हैं। तो ज़फ़्फ़ार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर आए, उन्हें वेलकम कहते हैं। तो इस मुश्किल हालात में हम कश्मीरी अवाम से यही दरख्वास्त करेंगे कि अपने पड़ोस में जो भी, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से लोग वो बेरोज़गार हैं, दुकानें बंद हैं, उनके कारोबार बंद हैं, तो जो मजबूर हैं, जो अपना सर्वाइवल नहीं कर सकते, उन लोगों का ख्याल रखें। ये रमज़ान का बरकत महीना है, तो अपने सदक़ात में, खैरात में उन लोगों का ख्याल रखें और इस मुश्किल घड़ी में अपनी आवाम को साथ दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी खालिद साहब को पैगाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार मैं फिर हाज़िर हूँ आपके साथ। तो मैं 2-3 बातों पे पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जितने भी ओवरसीज़ कश्मीरी यहाँ पर मौजूद है, या जितने भी लोग हैं, तो इनको कहा गया था जी कि हम इनको बहुत जल्द यहाँ से लेकर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की सूरत हाल बहुत ख़राब है, लोग बहुत परेशान हैं, जॉबलेस हैं लोग। कुछ ऐसे जो घर जाना चाहते हैं, मैं भी खुद घर जाना चाहता था, क्योंकि 4 अप्रैल को मेरी जो है ना वो 3 अप्रैल को बल्कि मेरी फ़्लाइट थी। तो चूँकि मुझे यहाँ आए हुए 26-27 माह हो गए आए हुए, तो ज़रा 2 साल के बाद मेरी छुट्टी बननी थी, जो थोड़ा लेट हो गया वो। तो फिर ये 3 अप्रैल को मैंने जाना था, तो उसकी वजह से ये लॉकडाउन की वजह से और फिर ये फ़्लाइट जो फ्लाई ऑपरेशन बंद हुआ, तो उसके वजह से मैं इस इंतज़ार में हूँ। तो पाकिस्तान कौंसलेट को भी मैंने एप्लीकेशन उसको दी थी कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। उसके बाद जो एहसास प्रोग्राम जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब की तरफ से शुरू किया गया था, एहसास प्रोग्राम के वाले से मैं मादरत के साथ शायद मेरी बात आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि ये भी मैं समझता हूँ कि ये वही सियासी और लोगों के जो है ना वो भीड़ चढ़ गया है, क्योंकि बेशुमार ऐसे लोग हैं। हम इसकी एक फहरिस्त तैयार कर रहे हैं, हमने कुछ लोगों की ड्यूटियाँ लगाई हैं आर यूनियन कौंसिल के वाइज, कि आर यूनियन कौंसिल की सतह पर हम लिस्टें तैयार कर रहे हैं कि किन किन लोगों को इस वक्त तक ये इमदाद नहीं पहुँची है। बेशुमार लोग ऐसे हैं मेरे नॉलेज में, और मेरे पास नाम भी आए हैं कि उनकी अभी तक लिस्टें, उनको अभी तक एयर सपोर्ट नहीं मिली है, हालांकि वो इंतहाई मुस्तहिक हैं।
हालांकि ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया था ये इसलिए शुरू नहीं किया गया, ये कोई ज़कात या खैराती लोग नहीं थे, बल्कि ये हर आदमी के लिए था कि जो भी आदमी मुस्तहिक है या जो बेरोज़गार हुए हैं या जॉब लेस हुए हैं लोग वहाँ कश्मीर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, तो उन सब लोगों को देना था। लेकिन ये बेशुमार लोगों को अभी तक नहीं मिला। ये उन्हीं लोगों को, वोटरों सपोर्टरों को मिल चुका है इस वक्त तक, और जो आम आदमी है जिनकी अप्रोच नहीं है, जिनकी कोई सपोर्ट नहीं है, उनको अभी तक नहीं मिला है। वाहिद साहब को आखिरी पैगाम आप देना चाहें? आखिरी बात यह है कि यहाँ हम लोग दुबई में वहाँ से बेवतन होकर आए, तो भूख अफलास गुर्बत लेकर यहाँ आए, तो इस धरती ने हमें जो है ना एक माँ की आगोश की तरह अपने जो है ना वो बाहें फैला के हमको अपनी झोली में भरा, और हमने यहाँ न सिर्फ रिज्क कमाया, खुशहाल हुए, और वहाँ पे अपने जो आप देखें कि वो इलाका भी खुशहाल हुआ हमारी वजह से, इस गवर्नमेंट ऑफ UAE की वजह से। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और इसकी तरक्की और इसके जो है ना इसकी तरक्की में हमसे जो भी बन पड़ा इंशाल्लाह हम भी अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दुबई जिंदाबाद, UAE जिंदाबाद। क्योंकि हमारा ईमान है कि जिस धरती पर हम जन्म लेते हैं वो धरती हमारी माँ होती है, और उसके बाद जिस धरती पर हम रिज़्क तलाश करने के लिए आते हैं और रिज़्क हासिल करते हैं वो भी हमारी माँ की अहमियत रखती है, दर्जा रखती है। तो हम UAE में, क्योंकि दुबई में UAE में मुझे तो 17 ईयर हो गए, 17 साल हो गए मुझे यहाँ पे। तो ज़रा मेरे वालिद साहब यहाँ पे थे, वो ओवर एज होने की वजह से यहाँ से रिटायर हुए। उसके बाद मैं आया, मेरा भाई है, मैं पूरा यहाँ UAE से हमने बहुत कुछ अल्लाह ताला ने हमको रिज़्क दिया है, हमने मेहनत की है अपना, और हमने बहुत बेहतर लाइफ गुजारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं UAE का और दुबई का, और दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनको तामीर तरक्की के मामलात को मुश्किलात से। शुक्रिया वाहिद काशिर साहब और खालिद कश्मीरी साहब। मैं भी इनकी बात की तायद करता हूँ, जो आंखों से जो देखा है कि UAE वाकई लाखों करोड़ों लोगों की माँ का दर्जा रखती है, और यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, वक़ार मिलता है। तो इसी के साथ मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा, और नाज़रीन के नाम इसलिए नहीं पढ़ सक रहा मैं कि अभी हमने निकलना है यहाँ से, चूँकि जिस जगह पर मैंने स्टे करना है वहाँ और जाने में शायद लॉकडाउन का मसला हो जाए, तो दोस्तों के लिए मसला बन सकता है। तो मैं खालिद कश्मीरी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, वाहिद काशिर साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, और बाबर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और लेकर इनके जो भाई हैं उनका भी। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।